नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश खबर। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ा मेगा इंटरव्यू। बात करते हैं बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ईटी नाउ स्वदेश पर बिग इंटरव्यू की। ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के साथ इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने इंफ्रा पर सरकार के विजन, विनिवेश, क्रिप्टो और शेयर बाजार में बढ़ती रिटेल हिस्सेदारी जैसे मुद्दों पर बेबाक बातचीत की। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक अहम हिस्सा। We were looking at your budget speech, and this is the fascinating part. The four most used words in your this year's budget speech were development, invest, infra, and growth. So is it fair to say that is the crux of this year's budget? Yes, actually, because we were clear from the very start for the preparation of the budget that last year's policies will continue. It is in the interest of the economy to give stability in policy, and it is in the interest of the economy to sustain the growth, which people have somehow pulled through and, amidst all odds. I repeat the admiration I have for the people of India who have gone through terrible odds. Every family has been affected. Every friend has suffered. So it's not a time where anyone has escaped untouched by this pandemic. And at this time, therefore, it was important for the government to continue the role of being supportive. Even if private investment is taking a while to come into this whole scene, government will have to spend and pull the economy forward. And gradually as we do this, we expect the private investment also to come out in its full force. And unless we give this sustained support, it would be a great letdown and a costly letdown, which we did not want and we don't intend to also. After all, if people can do so much for the economy, why would we want to? Therefore, yes, impetus on public investment, capital expenditure, impetus on infra, because that has a great multiplier. I was comparing the multiplier of per rupee spent, it's more than 2.95, whereas the revenue would just be less than 1. And so infra, and then looking at growth being the only way through which we can level or bridge the difference which exists between one set of people who are successfully conducting their businesses and others who are struggling. So to bring in that factor, which Prime Minister Modi has been always saying, even as a Chief Minister, that unless development is actually full and kicking, you're not going to be able to bridge the differences in the well-being of the people. So yes, that's the focus. Well, you've been asked this question before, that government expenditure is slow. That's largely because of pandemic impact of second wave. For those who are questioning government's ability to spend because of the higher capex count, are they underestimating Prime Minister's vision on Gati Shakti? Because that large engine, if they start working in, all the expenditure would be diverted in a very productive manner. That's right. It's also a question of drawing the best synergy that you can. Because in India, roads have always been made. There are ports existing much before, for the last 40, 50 years. There are also manufacturing zones in different parts of the country. There are no interlinkages between them. Okay, you started a manufacturing center here, but for it to reach the port or some kind of a airport or seaport from where they can sell their products, or even closer to getting them closer to the raw material heads, or in the neighborhood having a residential place where their children can study, or even to go to the neighborhood in the nearby area, a city, commuting between the place where they are in the manufacturing zone to the city. So these kind of gaps in connectivity of different kinds. And everything is there but no internet of today. Earlier it used to be phones. So that's exactly what the PM Gati Shakti is now bringing in, a framework
into which all of this can be fitted and made sure that your investment in making a, let's say, Mac manufacturing zone is not going to be headless, tailless, connectionless. That's the benefit PM Gati Shakti will bring in, into which the national infrastructure pipeline will get into. The monetization of assets also will come into play. So if there was a public asset, why wouldn't we want to use it to build a metro in it? But building a metro there, will it help? These kind of a holistic approach to the process of making India which can meet the challenges of India at 100. And that's why planning for the Amrit Kaal. Why did I have to lay a 25-year plan? People do keep asking me this. This is why. Because what you're looking at, infrastructure is not built for today, for just for tomorrow, and day after it disappears. What you build today will have to last 100 years. Wouldn't you want to plan for it? Will you want to give it due time of gestation? मेगा इंटरव्यू यहाँ पर और उसकी एक झलक आपने देखी बजट के आर्किटेक्ट के साथ यहाँ पर आंकड़ों की गुत्थी सुलझाते हुए और बड़े सवाल जिनके बारीक जवाब यहाँ पर मिलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की एक झलक यहाँ पर। लेकिन चलिए एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो हमने किया था उसकी एक झलक अब आपको दिखाते हैं। शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला किन सेक्टर्स पर बुलिश हैं, उनसे बातचीत की ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। आइए सुनते हैं बातचीत का एक हिस्सा। The selling what we've seen, it's not a selling, it's a meltdown in global technology stocks. Was that overdue? Is that over? It was not a meltdown in global technology stocks. Internet stocks. It was a meltdown in bullshit valued stocks. And all the SPACs and the dreams, where he was not selling earnings, but he was selling dreams. I think it's a very healthy correction. Has realization dawned on investors that ultimately it's about buying companies with cash flows and don't buy dreams but buy reality? Why we have to teach them whether they dawn or not? See, it is history. If there is one truth in history, that ultimately earnings are slaves of cash flow, valuations. So anybody may come in for a temporary period, but it's not going to make a difference. You were bullish on two sectors. We've been very vocal about it, metals and PSU banks. And the great example you shared with us was श्री सीमेंट 55 के पी पर कैसे ट्रेड कर रहा है, टाटा स्टील 5 पर क्यों कर रहा है. It should correct. Metals have made a reasonable comeback. Are you still bullish on metals? Yes, I am. Why is that, sir, if I may just ask Well, a I follow-up think, question? the EBITDA of Tata Steel this year will be more than the EBITDA of the entire cement industry. And the valuation is 5%, 10% of the cement industry. And I feel that the margins, maybe the peak margin of the Indian operation was 30,000. I think in the longer term, 24,000-25,000 rupees per ton margins will sustain. And with their expansion, 60,000 crores could be Tata's Steel's base EBITDA. PSU banks, they've done very well. You said, look, that was a sector which has underperformed for 10 years and you identified great value in that sector in 2020. The stocks have run up. Is that re-rating over? It just started. Okay. Why do you say that? Why? Because I feel so. I think the prices are going to go much higher. Is this Titan, when it went from 40 to 150, what did you think? The Titan of its low was 30 rupees. It went to 150, and today I think the effective price is 50,000. At the beginning of the COVID said, I'm a very, one more word, very happy investor in Tata Group of companies. And some of those companies have seen remarkable turnaround, whether it is Tata Motors, whether it is Tata Consumer, even Tata Communication. Is that one time depressed re-rating behind Tata Group of companies? I cannot answer that question. Whether it's behind us or ahead of us, I'm very bullish on the prices still. I still think there's a long journey. Tatas are trying something very interesting, which is that they are going very big in the EV chain, through Tata Motors, through Tata Power, through Tata Chemicals. Are you excited about that EV space, what's happening and what Tatas are trying to do? Well, I'm very excited about the vehicle space. I think they will become the biggest player in India and also in the developing world of electrical vehicles.
आरबीआई के डिजिटल करेंसी के लिए संसद से अभी कानूनी मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक सेंट्रल बैंक संसदीय मंजूरी मिलते ही होलसेल बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, बताएं डिजिटल करेंसी और इस पूरी सिचुएशन से जुड़ी ज्यादा जानकारी क्या है हमारे पास? जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल तैयार है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए, और हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक होलसेल बेस्ड प्रोडक्ट को पहले लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। जैसे ही पार्लियामेंट से अप्रूवल्स आते हैं उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो लॉन्च करने की प्रक्रिया है उसको शुरू कर देगा। आपको हम बता दें कि जो बैंक नोट की डेफिनेशन है उसमें डिजिटल रुपी को इंक्लूड करना है और उसके लिए लेजिस्लेटिव चेंजेस की जरूरत है जो कि पार्लियामेंट से अप्रूव होने पड़ेंगे और उसी के बाद आरबीआई इस पर काम कर सकता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अप्रैल के महीने में ही लाइव टेस्टिंग हो सकती है होलसेल बेस्ड प्रोडक्ट की एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। और जो डिजिटल रुपी है वो काम कैसे करेगा, आप जैसे कैश को यूज करते हैं अपने वॉलेट में, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट के जरिए आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे यूपीआई है या फिर आरटीजीएस है, इन सबको सिंक्रोनाइज किया जाएगा ताकि जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो तो कम से कम डिसरप्शन हो और सीमलेस पेमेंट ट्रांजैक्शंस हो सकें। रिलायंस जियो ने सिलिकॉन वैली के एक स्टार्टअप में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। जी हां, जियो के प्रणव मिस्त्री की कंपनी डीप टेक स्टार्टअप 2 प्लेटफॉर्म्स में $1.5 करोड़ का निवेश करेगी। प्रणव मिस्त्री ने इस आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी स्टार्टअप की शुरुआत जुलाई 2021 में की थी। सौदे के पूरे होने के बाद 2 प्लेटफॉर्म्स में रिलायंस जियो की हिस्सेदारी 25% हो जाएगी। दोनों कंपनियां मिलकर मेटावर्स जैसी तकनीक पर फास्ट ट्रैक में काम करेंगे। 2 प्लेटफॉर्म्स एक आर्टिफिशियल रियलिटी कंपनी है जिसका फोकस इंटरैक्टिव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में है। 2 का मानना है कि एआई के लिए टेस्ट और वॉइस के बाद अब अगला दौर विजुअल और इंटरैक्टिव का होगा, यानी कि किसी से बात करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट या वॉइस के बाद अब जल्द ही ऐसे महसूस कर सकेंगे कि आप आमने सामने बैठकर चर्चा कर रहे हैं। द इंडियन होटल्स कंपनी के सीईओ और एमडी पुनीत चटवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शानदार रिकवरी आएगी। आइए सुनते हैं उन्हें। On the quarter being a bit peculiar, but it was still the most positive quarter of the 7 quarters that have gone by for the industry, the tourism industry in general, and hospitality in particular. What we have learned is after the first wave, it took almost 6 months in certain states and in other states, depending on the lockdowns and the restrictions imposed, even up to 9 months for the industry to come back. Then came the devastation of the second wave, which was very, very strong. But the industry started bouncing back in 3 months. And then we were confronted with the third wave or the Omicron as of the 20th of December. But the effect on the cancellations and on the drop in business started subsiding as of 15th of Jan. And I would say it would be fair to estimate that the last 1 week has been positive for the business and the pickup is strong, especially the last 2-3 days. And this week is really critical because of the holiday in the middle of the week, in the week gone by. So I think at the end of this week, we will know more if this trend continues. I personally remain very optimistic that the trend will continue and the bounce back will be faster and the period would be shorter. डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के विनीत सांबरे ने हमसे बातचीत में कहा कि बाजार में छोटी अवधि में उतार चढ़ाव वाला कारोबार रहेगा। उनके मुताबिक लंबी अवधि में निवेशकों के पास अच्छा पैसा बनाने का अभी शानदार मौका है। मार्केट के हिसाब से
बजट के अलावा मुझे लगता है कई सारे मैक्रो रिस्क इमर्ज हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, इन सब के चलते यदि आप एक चीज की तरफ गौर करें, ये जो 3 माह के रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखें तो कई सारे कंपनीज ने अपने मार्जिन्स पे प्रेशर दिखाया है, और इसका रीजन है ये इन्फ्लेशन का बढ़ना, और डिमांड भी जो है कई पॉकेट्स में, रूरल हुआ, सेमी अर्बन कैटेगरीज में हमने डिमांड को भी स्लो होते हुए देखा है। तो मैं कहूँगा कि आई थिंक ये कुछ रिस्क जो आ रहे हैं उनको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट का ये एक्शन, टाइमली एक्शन बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है इन मैक्रो रिस्क को मद्देनजर रखते हुए कुछ शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटिलिटी कंटिन्यू रहे, बट लॉन्ग टर्म के लिए हम मार्केट में कॉन्फिडेंस बहुत है, या अगर वोलेटिलिटी रहती है तो वेल्थ क्रिएशन के लिए ये सबसे बढ़िया टाइम रहेगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। पीवीआर ने गुरुग्राम में 8 स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए M3M के साथ करार किया है। हमारे सहयोगी दानिश आनंद ने पीवीआर के जॉइंट एमडी संजीव कुमार बिजली से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। Could you tell us more about the new cinema that will come up in Gurgaon? How many screens are going to be there, and what are your plans for that particular cinema? We have about 8 screens, and 8 screens is going to be multiple formats. So far, we have planned to have 2 Lux auditoriums, which are the high-end auditoriums. We are planning on having a 4DX screen, which is the one where all the senses move and all the seats move. And a large screen format with about 10 meters or 11 meters height, which will be our PXL format. So going forward, can we expect PVR to tie up more with M3M so that there will be more future collaborations? Like, it is just Gurgaon as of now, but apart from Gurgaon, any other areas within Delhi NCR that are under your radar? Yes, we're always open to that, and I think in our business what is important is to have a good relationship and a good rapport with the developers, because of course they're the ones who give us a space in the right location. They're the ones who build good developments and malls, and if you are able to click and if you're able to find a good working relationship with them, then why not? We've always had a history and an experience of working with the same set of developers over the last 20 years, because we formed that relationship and respect for each other. और अब बात करते हैं आज आने वाले एसबीआई के तीसरी तिमाही के नतीजों की। कैसे रहेंगे नतीजे, विस्तार से बताने के लिए मेरे साथ अब मेरे सहयोगी हर्ष जुड़ गए हैं। हर्ष, बताएं एसबीआई की तीसरी तिमाही के नंबर से क्या उम्मीदें लगानी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने Q3 FY22 के रिजल्ट्स देने को तैयार वीकेंड में, और हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रीट से अपेक्षा क्या है Q3 के रिजल्ट से। नेट इंटरेस्ट इनकम प्रिटी मच जो भी Q2 में आया उसके ही आसपास आएगा, 31,200 करोड़ के थोड़े आगे पीछे 8% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पर जो पीपीओपी है उसमें काफी अच्छा बढ़ान आएगा, 7.5+% सिक्वेंशली और 12.5% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ वो नंबर दिखाएगा, और अब वो 19,500 करोड़ के आसपास वो नंबर आएगा। और पैट में भी अच्छा ग्रोथ आएगा, 7.5% पैट ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। प्रोविजंस थोड़े लोअर आएंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो, और पैट जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो उसमें 58% का बढ़ान आने की संभावना है ब्रॉडली, और वो 8,200 करोड़ के आसपास आने की अपेक्षा है स्ट्रीट की। ग्रॉस एनपीएस को देखा जाए तो वो अराउंड 0.2% से कम आएंगे, और नेट एनपीएस 0.1% से कम आएंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे देखा जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो। और जो कंप्यूटेड निम्स है वो 3.1 और 3.2% के बीच में आएंगे ब्रॉडली, वही नंबर एक्सपेक्टेड है। और बैलेंस शीट के साइड से जब हम एडवांसेस और डिपॉजिट साइड दोनों अच्छी ग्रोथ बताएंगे, एडवांसेस 3.5% प्लस ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो होंगे, ऑलमोस्ट 7% ईयर ऑन ईयर बेसिस का ग्रोथ दिखाएगा एडवांसेस नंबर। डिपॉजिट्स में भी 2% सिक्वेंशियल ग्रोथ आने की संभावना है, 10% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और वो जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो 2% है उसमें काफी अच्छा प्रभाव कासा रेशो का, तो कासा रेशो भी अच्छा इंप्रूव होगा, ऑलमोस्ट 0.2% से कासा रेशो इंप्रूव होगा, ब्रॉडली 45% के आसपास आएगा।
अब हम मैनेजमेंट की कमेंट्री देखा जाए तो मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन एसेट क्वालिटी स्पेशली रिटेल और कॉर्पोरेट बुक के साइड से वो इंपॉर्टेंट होगा, और जो लार्ज कॉर्पोरेट का ग्रोथ है, केपेक्स साइकिल का पिकअप है, उसकी कमेंट्री सुनने की अच्छी लगेगी। ओके, तो मजबूत नतीजों का अनुमान एसबीआई से लगाया जा रहा है, जहां पर नेट इंटरेस्ट इनकम और मुनाफे पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील ने अपनी तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे उम्मीद से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं। कैसे रहे नतीजे और डिटेल्स क्या हैं, बता रही हैं हमारी सहयोगी आशीषा। आशीषा, बताएं कैसे रहे टाटा स्टील के नंबर्स? जी हाँ, टाटा स्टील के नंबर्स हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं। हम एक सिक्वेंशियल डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज इस क्वार्टर में कोकिंग कोल जो उनका मेन रॉ मटेरियल होता है उनके प्राइसेस बढ़ रहे थे और स्टील प्राइसेस भी वीक थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 60,783 करोड़ के आसपास आया है, जो 0.6 मार्जिनल इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिटा 15,893 करोड़ पे आया है, जो 3.4% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन में हमने 110 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23.7% से डिक्लाइन हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर नंबर्स की बात करें तो डेफिनेटली हमने एक इंप्रूवमेंट देखा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इस क्वार्टर में रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ने के कारण हमने एक डिक्लाइन देखा। एबिटा पर टन, जैसे मैंने कहा, इस क्वार्टर में इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा थे और स्टील प्राइसेस भी वीक थे, उसके कारण एबिटा पर टन 2,100 रुपीज पर टन से डिक्लाइन हुआ है। बजट में ऐलान के बाद अगले 5 महीने में सरकार SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए नए कानून लाने जा रही है। इसमें मौजूदा कानून और नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें क्यों बड़े बदलाव होंगे, जानने के लिए देखिए प्रकाश प्रियदर्शी की ये खास रिपोर्ट। इस साल जुलाई तक SEZ के कानून में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बजट में नए कानून की घोषणा के बाद क्या बदलाव होंगे, इसे समझें। इससे पहले ये जानते हैं कि पिछले 16 सालों में SEZ का सफर कैसा रहा। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2005 और 6 के दौरान SEZ से करीब $3 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ, जो साल 2020-21 तक बढ़कर $102 बिलियन के करीब जा पहुंचा। उसी तरह पिछले 16 सालों में निवेश करीब $0.5 बिलियन से बढ़कर किसी तरह करीब $83 बिलियन के आसपास पहुंच गया। SEZ में जहां तक नौकरियों का सवाल है तो यहां काम करने वाली कंपनियों में साल 2005 में करीब 1,34,000 लोग काम करते थे, जो साल 2020-21 में बढ़कर 23,58,000 के करीब हो गए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की माने तो SEZ से एक्सपोर्ट बढ़ाने में मदद तो मिली है, पर ग्रोथ की रफ्तार उतनी नहीं रही जितनी उम्मीद की गई थी, जबकि इतने ही वक्त में कई देशों में ऐसी व्यवस्था से काफी फायदा हुआ है। अभी जो गवर्नमेंट ने कहा है बदलाव का, ये बदलाव आना बहुत जरूरी है अगर इनको सस्टेन करना है तो। नहीं तो ये लोगों ने बस एक जमीन के हिसाब से लेके रखी हुई है और ये रियल एस्टेट जैसे हो जाएगा। तो ये आएगा तो इसके अंदर जेन्युइनली फैक्ट्रियां आएगी। जानकारी के हिसाब से SEZ का नया रूप एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। घरेलू इंडस्ट्री को भी SEZ की बनी बनाई सुविधाएं मिलेंगी। इतना ही नहीं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया को भी बराबर का मार्केट मिले, इसके लिए SEZ यूनिट पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाने की भी योजना बनाई जा रही है। एक्सपोर्ट यूनिट को ये भी छूट मिल सकती है कि अतिरिक्त ड्यूटी चुकाए बगैर घरेलू बाजार में भी अपने सामान बेच सकती है। SEZ यूनिट के लिए डोमेस्टिक करेंसी में पेमेंट लाने की सुविधा दी जा सकती है। इंडस्ट्री की माने तो SEZ के लिए कंप्लायंस के बोझ को कम करने की जरूरत है। कंप्लायंस का जो बर्डन है वो बहुत हेवी है और बहुत एक्सपेंसिव है। इतना सब पेपर वर्क करना वहां पर और इतना सब कंप्लाई करना वो बहुत मुश्किल है। पहले तो आदमी उसी से वो घबरा जाता है और बहुत मुश्किल हो जाती है, कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये टैक्स हॉलिडे जो है वो होनी चाहिए। इसमें कोई SEZ के अंदर कोई भी तरह का टैक्स लगाना ये वायबल हो जाता है। 5 साल के बाद में फिर लोग क्या करेंगे कि 5 साल कंपनी चला के और फिर उसको बंद करने की सोचेंगे, तो उससे क्या फायदा होगा? वो तो एक नेगेटिव स्टेप हो जाएगा। नए कानून के तहत सरकार टैक्स छूट की अवधि खत्म होने के बाद SEZ यूनिट को साधारण एरिया की तरह काम करने की इजाजत दे सकती है। साथ ही कंपनियों को SEZ में दूसरी गतिविधियां करने की भी इजाजत मिल सकती है। प्रकाश प्रियदर्शी, ET नाउ स्वदेश।
आज सुबह सुबह कश्मीर और दिल्ली एनसीआर समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह 9:49 पर ये भूकंप आया तो लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.7 मापी गई है। भूकंप की गहराई 210 किलोमीटर की थी। इससे पहले 14 जनवरी को जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप के झटके की तीव्रता तब 5.3 थी। और इसी के साथ स्वदेश खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।